Let us learn QBD by case study. QBD, you know now that QBD is quality by design. पिछले वीडियो में आपने देखा है कि QBD is quality by design. Okay, so don't rely on final inspection for quality. You develop inbuilt quality during designing your product. Now you say I want to develop generic drug product. So generic product development. इसका केस स्टडी पढ़ेंगे. मेरे को जेनेरिक ड्रग डेवलपमेंट करना है, जनरल नहीं जेनेरिक. आई एम सॉरी, दिस इज जेनेरिक नॉट जनरल. तो जेनेरिक ड्रग डेवलपमेंट, जेनेरिक ड्रग क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, राइट? इट इज गिवन इन सेपरेट वीडियो. ये जेनेरिक प्रोडक्ट डेवलपमेंट. तो उसमें मैं बोलूंगा कि मेरे को डेवलपमेंट करना है ना, सो ड्यूरिंग डेवलपमेंट आई नीड टू मेंटेन द क्वालिटी. ओके, ड्यूरिंग डेवलपमेंट आई विल मेंटेन द क्वालिटी. इनबिल्ट क्वालिटी, क्वालिटी बिल्ट इन करना चाहिए आपने. दैट इज कॉल्ड एज क्वालिटी बाय डिजाइन. इसका डेफिनेशन भी आपको पता है और दूसरे एक वीडियो में इसका डेफिनेशन वगैरह सब दिया हुआ है. व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ क्यूबीडी? यू नो, आपको पता है. आप बोलो एलिमेंट्स ऑफ क्यूबीडी. अर्लियर लेक्चर वी हैव लर्नड इट. नंबर 1 QTTP. वेरी गुड. QTPP लॉन्ग फॉर्म बोलो. Quality target product. वेरी गुड. क्वालिटी टारगेट प्रोडक्ट प्रोफाइल. नंबर 2 QA. वेरी गुड. व्हाट इज लॉन्ग फॉर्म? Critical quality वेरी गुड, एक्सेलेंट. क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स. एट्रीब्यूट्स मतलब वेरिएबल्स. दैट इज राइट. नंबर 3 quality risk risk management. very good. Quality risk assessment. So I simply write risk assessment. Number 4 design Design very space. good. Space. Number 5 control strategy. Control strategies. में देंगे. Number 4 क्या बोला आपने? Control strategies. Very good. Control strategy. And number 5 last Continual improvement. very good. Continual improvement. Which of this is optional? Design. Yes. Hello, of course we do it. ऐसा optional मतलब optional नहीं होता है, but we don't give separate number for that element, right? So let us be ready to develop a product by QBD. See, my first step is to develop the QTPP. Okay. सबसे पहले there should be predefined objective. So what is my predefined objective? I want to make a tablet. Which tablet? I know the drug. एक इमेजिनरी ड्रग है, मेरे को टैबलेट बनाने का है. आई वांट टू डेवलप अ जेनेरिक प्रोडक्ट. मुझे पता है मुझे जेनेरिक प्रोडक्ट बनाना है. आप बताओ, जेनेरिक प्रोडक्ट बनाना है मतलब एनडीए फाइल करना पड़ेगा कि एएनडीए? ANDA. So I need to do which study? Which type of bio study? bioequivalence. BAB. Very good, excellent. So I will do, so you have understood from the last video. So that is BAB study, right? I have predefined objective. मेरा objective set है. Based on my objectives, I have made QTPP. Objective के basis पे मैंने QTPP बना के रखा है. And I will read out for you. मैं आपके लिए इसको पढ़ रहा हूँ. So QTPP is Quality Target Product Profile. You must be knowing it. Long form. I am just repeating so that you will understand. है ना? So the table looks like this. What is the element of QTPP? Then what is the target of QTPP? And what is the rationale to set this target? Why are you setting this target? Always remember, whenever you plan something, you should know what is objective of that. So whenever you take admission to the degree course, what is objective? Many people say, my objective is to have a degree. Wrong. Your objective should not be to have a degree. Your objective should be to gather some knowledge, which will be helpful to earn for my bread and butter. मेरा रोजी रोटी कमाने के लिए मेरे को कुछ तो सीखना है. That is my objective. But we forget that objective and we just run behind that degree. And then you achieve nothing. You don't get the job. Isn't it? So objectives are well defined. ऑब्जेक्टिव सोच समझ के करना चाहिए. ऑब्जेक्टिव बनाया, टारगेट रखा, जस्टिफाई द टारगेट. यू शुड से, सर आई वांट टू गेट ऑल इंडिया रैंक 1. आई विल टेल यू, जस्टिफाई द टारगेट. यू विल से दैट इज वेरी गुड टू, दैट इज गुड फीलिंग. नो, मेरे को मम्मी पापा का सपना पूरा करना है.
कि उनका बेटा ऑल इंडिया रैंक 1 आया, बेटी ऑल इंडिया रैंक 1 आई. You cannot dream like this because there are uncertainties. You can dream like I will have good job, I will do well, right? I will earn through by good ways. I will get good amount of money. मेरे को अमीर बनना है, मला श्रीमंत व्हायचंय, पण चांगल्या मार्गाने श्रीमंत व्हायचंय. That can be the target. So rationale should be there. हर एक चीज का rationale होना चाहिए. So ऑल इंडिया रैंक 1 का rationale क्या होगा? नो rationale. जिसका एडमिशन ऑल इंडिया रैंक 1 का एडमिशन जो कॉलेज में होगा, क्या वो एक ही बंदे को एडमिशन देगा? इज दैट पॉसिबल? कम से कम No. 8-9 सीट्स होता है हर एक इंस्टीट्यूट का. तो अगर मेरा रैंक 1 नहीं आया तो 2 आएगा, 2 नहीं आया तो 3 आएगा. मुझे एडमिशन तो कहीं ना कहीं मिलने वाला है. सो रैंक विल नॉट गिव मी लॉन्ग टर्म इफेक्ट, but my knowledge will give me long term results. If I get rank and it is not accompanied by the knowledge, I will fail. सामने वाले ने ऐसा नहीं बात करना चाहिए, अरे आपको रैंक 1 दिया किसने भाई, आपको तो कुछ भी नहीं आता है. ये बहुत गलत बात है. एंड इफ यू आर ऑल इंडिया रैंक 20, सामने वाले ने आपको आपका सुन के बोलना चाहिए, यू आर सो गुड, यू डिजर्व ऑल इंडिया रैंक 1. आई डोंट नो व्हाट इज द एग्जाम सिस्टम. How can you get that all India rank 20 and 30? That compliment is very good compliment. I am not saying ki don't have all India rank 1. I am simply saying don't run behind the ranks. That cannot be the objective. Okay? Because there is no proper justification for that objective. Only one justification is there. There will be business of coaching classes. You will get all India rank 1. I will take your interview. I will publish on the YouTube. And whenever you search on Google, you will get, oh, all India rank 1, all India rank 2. This class is so good. Actually, your knowledge cannot be indicated just by ranks. Your overall result should be good. Isn't it? अभी ये चिल्ला चिल्ला के बताने का बात नहीं है कि अच्छा रिजल्ट आया, अच्छा रिजल्ट आया. ये तो समझने का बात है, ये तो एक्सपीरियंस करने का बात है. Same way, you have to justify in drug development that what is the rationale. So, what is my target? QTPP का target क्या है? My product will be tablet, limited dosage form. What is my product? My product is tablet. Why this target? Justify. Because I want same dosage form as of innovator. Now what is innovator? You should understand from last video, right? उसमें से आप समझ जाएंगे कि innovator क्या है. Now what is my target? Which dosage design? Which type of tablet? Sustained release, immediate release, delayed release, what? So I will keep target immediate release tablet. Suppose example, immediate release tablet. Why immediate release tablet? Because this design will meet my label claims as per the innovator. Label claim मतलब label पे जो लिखा है. Okay. Now what is my route of administration? Oral. Why oral? Because I should have same route of administration as of innovator, because I want to apply for ANDA. That is my objective. So in line with the objective, I am setting my targets. What is my dose? Dosage strength का मतलब है dose कितना देंगे आप. So say I will say X. Why X? Same as of innovator. You will say sir, ये तो कॉपी किए जैसा हो गया. ये कॉपी करना नहीं होता है. ये आपके प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, ये कॉपी नहीं है. आप बोलेंगे क्या सर, इनोवेटर को तो कॉपी कर रहे हैं. कॉपी नहीं कर रहे हैं, उसके जैसा बना रहे हैं जो सस्ते में बेचेंगे, जिससे पेशेंट को फायदा होने वाला है. So generic development is good for patients, it is good for society. Always understand this. Indian industry is leader in generic drug development and you should feel proud about it. Right? Now you see the rationale. रैशनले म्हणजे त्याच्या उसके पीछे का कारण क्या है. रैशनले का मतलब है कारण मीमांसा. आपको वो एक्सप्लेन करते आना चाहिए. व्हाट तर्क काय त्याच्या मागचा. व्हाई आर यू डूइंग इट. आप जस्टिफाई करना चाहिए. सपोज आई एम टेकिंग सम फास्ट फूड, यू शुड बी एबल टू जस्टिफाई व्हाई आर यू ईटिंग दैट फास्ट फूड. दैट इज कॉल्ड एज रैशनले. So you will say, sir, I have not carried tiffin today. Sir, मम्मी को ठीक नहीं लग रहा था. Sir, मेरा मूड नहीं है घर का खाना खाने का. And then you will understand. When you try to give rationale, then you understand whether you are doing it right or wrong.
तो कोई भी चीज करने से पहले वो चीज रैशनल है कि नहीं ये समझना चाहिए, तो आपको समझ में आता है कि सच में हम लोग सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। आर यू गेटिंग इट? सो रैशनल है मतलब जस्टिफाई इट, व्हाई आर यू डूइंग इट, दैट इज सिंपली यू कैन कॉल इट एज जस्टिफिकेशन. So instead of rationally, I can write it justification. Why that target? Why not other target? So I will ask you, why not injection? You will say, no, no. I want to make generic product for this innovator and they have tablet. So I need to make tablet. Like that. This ये हो गया आपका प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन. अभी उसका फिजिकल वेरिएबल क्या है? एट्रीब्यूट का मतलब है फिजिकल वेरिएबल्स और प्रॉपर्टीज. What should be weight of my tablet? What should be thickness of my tablet? What should be friability of my tablet? What should be hardness of my tablet? Disintegration time कितना होना चाहिए? Dissolution कितना होना चाहिए? All these should be similar to RLD. RLD का मतलब है, लिख लो नोटबुक में, रेफरेंस लिस्टेड ड्रग. RLD क्या होता है? बोलो बोलो, you should pronounce it. Reference listed. Listed drug. वेरी गुड. रेफरेंस लिस्टेड ड्रग, दैट इज आरएलडी. रेफरेंस लिस्टेड ड्रग को सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं आपको, इनोवेटर. जनरली रेफरेंस लिस्टेड ड्रग इनोवेटर जनरली, दूसरा भी हो सकता है, इनोवेटर ही होता है यूजुअली. ओके, तो उसका एनडीए में सब इंफॉर्मेशन दिया है, उसके लेबल में सब दिया है इंफॉर्मेशन कि हाउ इट इज, डिसइंटीग्रेशन टाइम क्या, हार्डनेस क्या, वगैरह वगैरह. दैट इज योर टारगेट, फिजिकल प्रॉपर्टीज. आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट. Yes, sir. अभी ये तो हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज. इसका क्वालिटी एट्रीब्यूट्स क्या होना चाहिए? सो वही आया वापस प्रॉपर्टीज में, आइडेंटिफिकेशन. ऐसे ऐसे मतलब ड्रग कंटेंट, ये प्रॉपर्टीज है ना उसका, कितना परसेंट ड्रग होना चाहिए, डोज यूनिफॉर्मिटी, ये हम लोग टैबलेट में पढ़ चुके हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी में. व्हाट इज डोज यूनिफॉर्मिटी, है ना. डिसोल्यूशन, डिग्रेडेशन प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं, रेसिडुअल सॉल्वेंट क्या हो सकता है, इसके बारे में अलग से भी बताऊंगा आपको, व्हाट आर रेसिडुअल सॉल्वेंट्स. ओके, सो यू सी दिस, फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंस रिक्वायरमेंट, मतलब बायो इक्विवेलेंस है, फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंस का रिक्वायरमेंट है. फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंस क्या होता है ये भी अलग से पढ़ाऊंगा मैं आपको बायो फार्मास्यूटिक्स में. गॉट इट? सो इट शुड मीट कंपेंडिया, आईसीएच और अदर क्वालिटी स्टैंडर्ड. दैट इज माय जस्टिफिकेशन. उसने फार्माकोपिया या दूसरे किसी स्टैंडर्ड को मैच करना चाहिए. गॉट इट? डिसोल्यूशन होना चाहिए बिकॉज इट प्रोवाइड्स आइडिया अबाउट एब्जॉर्प्शन. ये भी बायोफार्मास्यूटिक्स में पढ़ेंगे. तो ये हो गया ड्रग प्रोडक्ट का एट्रीब्यूट्स. नाउ क्यूटीपीपी चल रहा है अभी भी. फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स क्या होनी चाहिए? पीके एट्रीब्यूट्स. So IR should have Tmax 2 hours or less. And now you should understand, अगर पिछला वीडियो आपने देखा है, बायो इक्विवेलेंस टू आरएलडी मींस बायो इक्विवेलेंस टू इनोवेटर. बायो इक्विवेलेंस कैसे बनता है? जस्टिफिकेशन क्या है आपका? Cmax, AUC, Tmax should be similar to RDL. RLD बोलना चाहिए, राइट? रेफरेंस लिस्टेड ड्रग. इट विल इंश्योर एफिकेसी एंड ऑनसेट, मतलब इससे इंश्योर हो जाएगा कि आपका प्रोडक्ट पेशेंट के काम आएगा. अगर टीमैक्स लंबा जा रहा है, सीमैक्स सही नहीं है, एयूसी सही नहीं है, शायद आपका प्रोडक्ट इफेक्ट नहीं दिखाएगा. अगर वो बहुत दूर गया, टीमैक्स बहुत लंबा गया, आपको इफेक्ट जल्दी नहीं मिलेगा. अगर टीमैक्स बहुत फास्ट आया, सीमैक्स एकदम बढ़िया बहुत शूट हो गया, टॉक्सिसिटी हो सकता है. तो सीमैक्स बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए. -20% टू बोलो, Plus Plus 25%. Plus 25%. वेरी गुड, राइट. सो दैट इज योर रेंज, बहुत ज्यादा नहीं बहुत कम नहीं, इजंट इट? सो ये हो गया फार्माकोकाइनेटिक एट्रीब्यूट. ये क्यूटीपीपी का अपना टेबल है, राइट? और भी है आगे. ये है आपका एलिमेंट. कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, किस इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो सकता है आपका प्रोडक्ट? सेम एज आरएलडी. इनोवेटर का जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है वही हमारा है, दही के साथ मत खाओ, दूध के साथ मत पियो, वगैरह वगैरह जो भी है ना. स्पेसिफिक पॉपुलेशन, स्पेसिफिक पॉपुलेशन का मतलब होता है एल्डर, चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन. दीज आर कॉल्ड एज स्पेसिफिक पॉपुलेशन. ये यू कैन से नो, नॉट स्पेसिफिक ग्रुप. गॉट इट? डोंट रीड दिस आउट, जस्ट अंडरस्टैंड क्यूबीडी. स्टेबिलिटी एटलीस्ट 24 महीने का होना चाहिए. Why your product should be 24 months stable at room temperature for commercialization? If your product will degrade in 1 month, can you market it?
Very No. difficult. No, we cannot do that. FDA will not allow. 1 महीना तो ट्रांसपोर्टेशन में जाता है यार. गोवा में ड्रग बना, वो आसाम में जाने के लिए तो 4 महीना जाएगा यार. 1 महीना वो बनेगा, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, वहां से रिटेलर के पास जाएगा, एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में जाएगा. स्टेबिलिटी होना चाहिए. आपका पैकेजिंग सिस्टम भी डिफाइंड होना चाहिए. विल यू फील योर टैबलेट इन बॉटल्स और इट विल बी ब्लिस्टर? ब्लिस्टर पैकेज होगा कि बॉटल पैकेज होगा? ओके, व्हाई? बिकॉज दैट इज योर कमर्शियल रिक्वायरमेंट. विदाउट पैकिंग हाउ कैन यू गिव इट, राइट? सो ये हो गया QTPP. आई होप यू अंडरस्टूड दिस एग्जांपल. Yes, sir. ओके, नाउ यू अंडरस्टैंड. सबसे इंपॉर्टेंट है कि QTPP डिजाइन करने का. एक बार QTPP डिजाइन हो गया, आपका टारगेट सेट हो गया ना, आपका क्वालिटी टारगेट प्रोडक्ट प्रोफाइल बन गया. अभी आप आगे जाके उसका CQA फाइंड आउट करो. आई विल शो यू हाउ टू डू दैट, हाउ इट इज डन. वेरी इंटरेस्टिंग, यू विल एंजॉय दिस. सी, CQAs, लॉन्ग फॉर्म ऑफ CQAs. लास्ट वीडियो में आपने देखा है, बोलो. Critical quality Critical attribute. quality Critical attribute. quality attributes. Very good. So now we will understand for this product development, for this drug product development, how to find out critical attributes. Critical attributes are of two types. Critical quality attributes can be CQAs. They can be related with process. They can be related with material. So your material related attributes are called as critical material attributes. And your process related parameters are called as, please tell me. CPP. Very good. Critical, बोलो. Critical process Process parameter. parameter. Very good, excellent. Now you see, अभी हमको देखना है CQAs. अभी हम लोग CQA को देखेंगे. ओके, सो माय टारगेट इज टैबलेट. दैट इज नॉट द CQA. सबको पता है कि टैबलेट ही बनाना है. सो दिस इज नॉट क्रिटिकल एट्रीब्यूट. मुझे पता है कि टैबलेट ही बनाना है, ओरली देना है, आई नो दैट. IR बनाएंगे, आई नो इट. डोज तो वही रखना है बिकॉज रैशनली इज सेट. ओके, नाउ वेट चेंज हो गया तो चलेगा आपको? नहीं चलेगा. सो आई नीड टू मेंटेन क्वालिटी हियर. My quality of tablet will be hampered if weight is different, if friability is different, if hardness is different. So these becomes my CQA. ये सारे मेरे CQAs है. These are critical. तो मैं डेवलपमेंट के दौरान ही इसके ऊपर ध्यान दूंगा कि इसमें ये बिगड़ना नहीं चाहिए. ये बिगड़ा तो मेरा प्रोडक्ट फेल जाने का चांसेस है. वेट के ऊपर अच्छे से ध्यान देना चाहिए, फ्राइबिलिटी के ऊपर अच्छे से ध्यान देना चाहिए. सो आई विल मार्क इट एज CQA. ये सारे मेरे CQAs हो गए. 1 2 3 4 5. These are my CQAs. Now identification is my CQA. Will you accept that? आप ऐसे एक्सेप्ट करेंगे, अरे यार प्रोडक्ट डेवलप किया था पैरासिटामोल का, गलती से आइबुप्रोफेन का पाउडर डाल दिया. Will you accept it? How possible? So you will control your raw material properly. So whenever you will receive the raw material, आपका रॉ मटेरियल का कंसाइनमेंट आएगा, पार्सल आएगा. यू विल बाय रॉ मटेरियल फ्रॉम सम अदर कंपनी, देन यू विल टेस्ट इट. आप इसको टेस्टिंग करेंगे और आप आइडेंटिफाई करेंगे बाय डूइंग एनालिटिकल टेक्निक्स. ओके, एंड you will establish the identity that whatever powder is given, it is having that drug. उसका ऐसे all these are CQAs. ये सारे आपके CQAs बनेंगे. नाउ रेसिडुअल सॉल्वेंट CQA है कि नहीं, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा. इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है. इफ यू आर डूइंग टैबलेट कोटिंग, you will use some solvent in coating of tablet. In that case, residual solvent is important. But if that residual solvent is water, कोटिंग स्प्रे कर रहे हो आप, टैबलेट के ऊपर कोटिंग कर रहे हो एंड देन ड्राइंग करेंगे, so water will get evaporated. Some water will remain in the tablet as traces. You will call it as residual solvent. Is water carcinogenic? No. वाटर से कैंसर होता है क्या? नहीं होता है. आपका ड्रग वाटर सेंसिटिव है क्या? से नहीं है. सो रेसिडुअल सॉल्वेंट इज नॉट क्रिटिकल फॉर मी. I hope you got the point. Now you understand.
If I used some solvent in drug synthesis, ड्राइंग के बाद भी थोड़ा तो रेसिड्यू रह जाता है, and if that is carcinogenic, will you consider residual solvent levels as critical attribute? Yes. Yes, because that is critical for us. So अपने लिए क्या critical है, क्या critical नहीं है, ये हर एक के लिए अलग होता है. It depends on the product. You cannot apply simple generalized, very very generalized law. Don't apply it to yourself. Some friends will tell you, मैंने तो बस थोड़ा ही घंटा पढ़ता हूं, मैं 2 घंटे पढ़ा, मेरे को अच्छा मार्क्स आता है. Doesn't mean you all should read for 2 hours only. वो उसका स्टाइल है, आपका स्टाइल अलग होगा. So don't say कि त्याने असं केलं म्हणून मी असं केलं, वो ऐसे कर रहा है तो मैं भी ऐसे कर रहा हूं. That is not good. Don't generalize it unnecessarily, isn't it? अलग से बात करेंगे इसके ऊपर. बट सीक्यूएच कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा ये तो डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट कैसा है. फॉर सम प्रोडक्ट फॉर सम ड्रग डिग्रेडेशन प्रोडक्ट वेरी क्रिटिकल, बट सम ड्रग्स आर सो स्टेबल, डैम स्टेबल, डिग्रेडेशन होता ही नहीं है. कुछ भी करो आप 60 डिग्री 70 डिग्री पे भी हिट करो, डिग्रेडेशन नहीं होता है, तो क्यों ध्यान देने का फिर उसके ऊपर? देन इट इज नॉट क्रिटिकल. बट इफ डिग्रेडेशन प्रोडक्ट अगर बहुत फास्ट डिग्रेडेशन हो रहा है उसका, देन इट इज क्रिटिकल. Okay, now pharmacokinetic parameter very critical, otherwise my product will get failed. Bioequivalence तो अपना टारगेट है, तो Cmax, Tmax very important for me. This is CQA for me. ये मेरे लिए CQA है. ये CQA हो सकता है नहीं हो सकता है, depends on the pharmacokinetics. So I am making the list of CQAs. Now contraindications, not CQA for me. This is not critical quality attribute as of now. Specific population, I am not going for any specific population. I am not developing it for pregnant women, for children, for elders, like general है, adult के लिए बना रहे. Stability is CQA. I cannot afford if drug is not stable. आप सोचो 20 महीने के लिए ड्रग स्टेबल है, 21वें महीने में किसी ने खा लिया तो टॉक्सिसिटी हो जाएगा उसको. वेरी बैड. दैट इज वेरी क्रिटिकल. माय एक्सपायरी डेट, जब जो मैं एक्सपायरी डेट दूंगा वहां तक मेरा प्रोडक्ट स्टेबल होना चाहिए, राइट? बॉटल्स नॉट क्रिटिकल एज ऑफ नाउ. क्रिटिकल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट. अभी मेरा हो गया सीक्यूए का लिस्ट, सो आई विल मेक इट लिस्ट ऑफ सीक्यूएस. चलो हो गया सीक्यूए का लिस्ट. जो मटेरियल से रिलेटेड है आई विल कॉल इट एज सीएमएस, क्रिटिकल मटेरियल एट्रीब्यूट. जो प्रोसेस से रिलेटेड है आई विल कॉल इट एज सीपीपी, क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर्स. चलो देखते हैं. लेट अस डू रिस्क असेसमेंट. अभी करेंगे इसका रिस्क असेसमेंट. रिस्क असेसमेंट करना है मतलब क्या करना है? ये जो पूरा लिस्ट बनाया उसको चेक करना है, वापस से क्रॉस चेक करना है. कैसे क्रॉस चेक करना है मैं आपको बताता हूं. सी दिस इज द टेबल people make here. See what is my input material. This is the table. Input material क्या है? ड्रग सब्सटेंस है. उसका CMA क्या है? CPP क्या है? CMA आपको पता है क्या है? See polymorphic form is my critical material attribute. अगर मेरा पॉलीमॉर्फ चेंज हो गया, मेरा डिसोल्यूशन सोल्यूबिलिटी बदल जाएगा, तो ये मेरे लिए क्रिटिकल मटेरियल एट्रीब्यूट है. इससे कौन सा सीक्यूए अफेक्ट होगा? ये मटेरियल एट्रीब्यूट की वजह से कौन अफेक्ट होने वाला है? कौन सा सीक्यूए? डिसोल्यूशन इज माय सीक्यूए. ये डिसोल्यूशन को अफेक्ट करेगा. देन पार्टिकल साइज इज इंपॉर्टेंट फॉर मी. दिस इज सीएमए फॉर मी. मटेरियल का बड़ा एट्रीब्यूट है क्योंकि इससे हार्डनेस अफेक्ट होगा, डिसोल्यूशन अफेक्ट होगा. इंप्यूरिटी, डिग्रेडेशन प्रोडक्ट इज इंपॉर्टेंट. ओके, why? Because it will affect my CQA. Which CQA? Stability. Suppose water content may be important. Why? For microbial growth. If it is not CQA, don't worry about it. I hope you are getting my point. एक्सिपिएंट का एट्रीब्यूट क्या है, प्रोसेस का एट्रीब्यूट क्या है, और क्या कौन सा सीक्यूए अफेक्ट होगा. ओके, सो दिस इज द वे वी डू इट. यू सी हियर आल्सो मैं सीविंग कर रहा हूं. व्हाट इज माय ऑपरेशन? प्रोसेस क्या है मेरा? सीविंग, सीव किया मैंने मटेरियल, स्क्रीनिंग किया. सो सीपीपी क्या है मेरा? क्रिटिकल प्रोसेस एट्रीब्यूट. स्क्रीन का साइज क्या है भाई? अगर मैंने उल्टा सीधा सीव यूज कर दिया तो पार्टिकल साइज बदल जाएगा पूरा, एंड इट विल अफेक्ट माय डिसोल्यूशन देन. सो एवरीथिंग
आप कंपैक्शन कंप्रेशन कैसे करेंगे, के आप फाइनल ब्लेंडिंग कैसा करेंगे, आप कंप्रेशन कैसे करेंगे, आपका कंप्रेशन फोर्स कितना होगा, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। हाउ विल यू डू द कोटिंग, कोटिंग में एयर फ्लो रेट क्या, गन डिस्टेंस क्या, पैन स्पीड क्या, स्प्रे रेट क्या, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। And you should know, you should justify which CQA is affected by this CPP. What is the mixing time? Okay, what speed of compression? Everything is important. अभी risk assessment कैसे करने का? What I will do? I will change this parameter. I will make the design space and I will define the risk level. जो red में दिखाया high risk level. I cannot compromise with this polymorphic form. Particle size okay. थोड़ा सा रेंज बड़ा हो सकता है। इम्प्यूरिटी, आई कैनॉट टॉलरेट इम्प्यूरिटी। पेरोक्साइड, पेरोक्साइड इज व्हाट, इट इज इम्प्यूरिटी। या एक्सिपिएंट में पेरोक्साइड हो सकता है, हाईली रिस्की। व्हाई रिस्की, माय प्रोडक्ट इज सेंसिटिव टू ऑक्सीडेशन एंड पेरोक्साइड्स कॉजेस ऑक्सीडेशन। So some CMAs and CPPs have high risk level and some have lower risk level. I have to identify which have high risk level and low risk level. Yellow indicates lower risk level. Red indicates higher risk level. So how to do this risk assessment? You have to do different experiments. 10 मिनट के लिए मिक्सिंग किया, okay? 10 मिनट के लिए मिक्सिंग किया और समझा कि प्रोडक्ट को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, so it is not high risk. बट अगर टाइम थोड़ा ज्यादा कम किया तो पूरा बिगड़ गया डिसोल्यूशन, वेरी हाई रिस्क। पेरोक्साइड ऐड करके देखा, कुछ डिग्रेडेशन नहीं है, लो रिस्क। पेरोक्साइड ऐड किया, खतरनाक डिग्रेडेशन हो रहा है, पूरा ऑक्सीडेशन हो रहा है आपके ड्रग का, इंप्यूरिटी बन रहा है, हाई रिस्क। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। Yes. है ना, बाउंस नहीं हो रहा है ना, जो क्या उड़ जाता है। नहीं। हाँ, गुड। सो आई एम ट्राइंग टू मेक इट सिंपल, बट कितना सिंपल भी ओवर सिंपल नहीं करना चाहिए ना उसको। नाउ आई विल मेक द डिजाइन स्पेस। डिजाइन स्पेस मींस आई विल डिफाइन द रेंजेस। तो मैं रेंजेस डिफाइन करूंगा। सी हाउ, आई विल गिव यू वन एग्जांपल। डिसइंटीग्रेंट कितना डालना है, सो डिसइंटीग्रेंट लेवल कितना डालेंगे, सो आई विल से 0.5%, 1%, 1.5%, 2%, 3%। 3% product fails, 0.5% product fails, suppose. So this becomes my design space. What is the allowed variation for me? 1% to 2%. I hope you are getting my point. Yes, sir. Then again I will try 1.1%, 1.2%, 1.3%, 1.4%, 1.5%. इसको बोलते हैं डिजाइन स्पेस, दैट द रेंज in which I can do the experimentation. ठीक है भाई, हो गया, रिस्क असेसमेंट कर लिया, मुझे पता चला वो क्या क्या क्रिटिकल है। अभी करेंगे कंट्रोल स्ट्रेटेजी। सी द सेम टेबल, यहां तक तो टेबल हमने देख ही लिया था। मटेरियल क्या है, प्रोसेस क्या है, यहाँ पे लिखा था। सीएमए की सीपीपी यहाँ पे लिखा था। इंपैक्ट किस सीक्यूए पे होता है ये लिखा था। रिस्क लेवल डिफाइन किया था, हाई और लो। अभी रेंजेस, डिजाइन स्पेस देखा, कौन सी रेंज होगी, डिजाइन स्पेस। ओके, ये पढ़ो मत आप, खाली समझो मैं जो बात कर रहा हूं। नाउ प्रपोज्ड ऑपरेटिंग रेंज, मिनिमम कितना, मैक्सिमम कितना। जैसे मैंने समझाया डिसइंटीग्रेंट 1% से लेके 2% तक मिनिमम मैक्सिमम डिफाइन किया। कंट्रोल स्ट्रेटेजी क्या है, कंट्रोल स्ट्रेटेजी इज दैट ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट आई कैनॉट ऐड दिस डिसइंटीग्रेंट लेवल आउट ऑफ लिमिट। ये लिमिट के बाहर में कभी नहीं जाने वाला। वाटर कंटेंट इसका लिमिट में सेट करूंगा, ये लिमिट के बाहर गया तो मेरा प्रोडक्ट फेल डिक्लेयर होगा, मैं मार्केट में जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे पहले से पता है कि वाटर लेवल में गड़बड़ हो गया, बात खत्म। तो दीज आर माय स्पेसिफिकेशंस। जैसे फोन के स्पेसिफिकेशन होते हैं, 16 मेगापिक्सल कैमरा, कम नहीं होना चाहिए। वैसे मेरा टैबलेट का स्पेसिफिकेशन है कि रिजोल्यूशन 30 मिनट्स में होना चाहिए। 30 मिनट में नहीं हुआ, योर प्रोडक्ट इज फेल। दिस इज माय कंट्रोल स्ट्रेटेजी। स्पेसिफिकेशन बनाऊंगा मैं उसका कि डिसोल्यूशन का टाइम क्या हो, डिसइंटीग्रेशन का टाइम कितना हो, हार्डनेस का वैल्यू कितना होना चाहिए। ओके, दीज आर ऑल एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। ये हो गया मेरा क्वालिटी कंट्रोल का स्ट्रेटेजी कि किस बात की वजह से मैं उसको एक्सेप्ट करूं और कौन से केस में उसको फेल बताऊं, ये मुझे पता होना चाहिए।
got the point? And then there is a Yes. continuous improvement. फिर करेंगे continuous improvement. Now we had learned in last lecture, दूसरे पहले वीडियो में हमने देखा था कि tools of QBD. तो देखो ये सब कैसे किया हमने. हमें कुछ प्रायर नॉलेज है, टैबलेट क्या होता है, कैसे बनाते हैं, व्हाट आर द इवैल्यूएशन टेस्ट ऑफ टैबलेट, ये प्रायर नॉलेज है आपका. आपने रिस्क असेसमेंट किया, आपने डिजाइन किया एक्सपेरिमेंट को. एक्सपेरिमेंटल डिजाइन अलग टॉपिक है. आपने प्रोसेस एनालिटिकल टेक्निक यूज कर सकते हैं, पैड बोलते हैं उसको. यू कैन अप्लाई पैड, प्रोसेस एनालिटिकल टेक्निक. Okay, so this was the case study of QBD in generic product drug development. I hope you enjoyed it. Yes, sir. Yes, sir. So that is for your knowledge, and it will help you to write in semester exam. It will help you to solve many MCQs based on this, if any MCQ is asked. As of now, MCQs have been asked on ICH guideline numbers related with QBD, and that you already know. We have already written in your notebooks, isn't it? Thank you.